Good morning, students. Hope you will find at your respective places. In continuation to our topic, that is the transpiration, we mean that the transpiration is the loss of water from what we call the aerial parts of the plant, mainly that is the leaves. Yeah, हम कहेंगे through stomata or from the aerial parts of the plant in the form of water vapor. So transpiration is the process of, it is the mechanism of loss of water from the aerial parts of the plant in the form of water vapors. This transpiration is of three types जो हमने पहले ही पढ़ा. It may take place by means of the cuticle. Through this about 5 to 10% हम कहेंगे जो ट्रांसपिरेशन हो जाती है. Then there's stomatal which is the what we'll see जहाँ पर हम देखते हैं कि through this stomata maximum transpiration takes place about 90 to 95% जो हम देखते हैं कि transpiration हो जाती है. And then we have the cuticle, this lenticel, and through this lenticel very negligible amount of this transpiration takes place. We also study the mechanism how this stomata open and close, where we will see we have discussed a very well-known theory, that is the active potassium theory, which was given by the Leavitt, where we will see that when the potassium ions they enter the God cells, the God cell becomes turgid, and then what we'll see water enters into the God cells from the subsidiary cells and it opens. But at the night what we will see जो potassium ion they leave, and it's the hydrogen ions which enters into this in the God cell. But जो हम टाइम में देखते हैं कि जो movement of ions, it's the passive movement, while at the night it is the active movement. Now there are various factors that affect the transpiration, and those factors जो हमारे पास है उनको हम discuss करने की कोशिश कर लेंगे, and we will discuss them under two categories. First one, we have got internal factors and we have got external factors. Internal factors simply means the factors which are found within the leaf, within the plant, and the external factors mean the factors which are found outside, that is the environment that plays an important role in the transpiration. In the internal factors we have got the that is the structure of the leaf. Yeah, we can simply write it as leaf structure. अगर हम देखिए लीफ स्ट्रक्चर mainly in case of the xerophytic plants. Xerophytic plants में हम क्या देखते हैं कि that their outer layer it is very much thick, वो thick होती है. वहाँ पर हम देखते हैं कि rate of transpiration वो बहुत कम होती है, that is considerably very much reduced, क्योंकि उसमें हम देखते हैं कुछ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन होती है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे मॉडिफिकेशंस आते हैं. उसमें फॉर एग्जांपल उसमें हम देखते हैं एक वैक्सी लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड एज द क्यूटिकल, विच इज द एंड ड्यू टू दिस क्यूटिकल जो हम देखते हैं कि जो ट्रांसपिरेशन जो होती है वो बहुत कम होती है. दूसरा हमारे पास जो है दैट इज द एज ऑफ प्लांट. अगर हम देखें एक ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ साइकिल है, इसको हम आमतौर पर 3 हिस्सों में हम इसको डिवाइड करते हैं. एक होता है उसका बचपन, दैट इज द इन्फेंसी पीरियड. दूसरा उसका होता है जो यूथ एज, एंड लास्ट वन दैट इज द ओल्ड एज. सेम इज द केस इन केस ऑफ द प्लांट्स. वी विल फाइंड 3 डिफरेंट एजेस वहाँ पर आती है. एक आता है जर्मिनेटिंग एज, जर्मिनेशन जहाँ पर होती है. जर्मिनेटिंग एज, जब जर्मिनेटिंग सीड्स होते हैं वहाँ पर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन वो बहुत कम होती है. फिर सेकंड पार्ट हमारा पास आता है जब इट बिकम्स द मैच्योर, वहाँ पर इट रीच टू इट इज मैक्सिमम. लेकिन जब सेंसेंस हो जाती है, जब एजिंग आ जाती है, फिर हम कहते हैं कि इट डिक्रीजेस. सो लाइक दैट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात कर लेंगे, वी हैव गॉट 3 स्टेजेस इन आवर लाइफ. एक वो लड़कपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा. सेम इज द केस इन केस ऑफ द प्लांट्स. वी हैव गॉट द जर्मिनेटिंग सीड, जहाँ पर हम देखते हैं कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन दैट इज वेरी मच स्लो. सेकंड पार्ट एट मैच्योरिटी, जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है इट इज़ एट इट इज मैक्सिमम. एंड देन सेंसेंस की जब बात पूछते हैं, सेंसेंस स्टेज जब आती है, जब बुढ़ापा आता है, वेयर वी विल सी जो हम ये देखते हैं कि ट्रांसपिरेशन रेट इट डिक्रीजेस. थर्ड जो हमारे पास इंटरनल फैक्टर है दैट इज द रूट शूट रेशियो.
रूट शूट रेशो। रूट शूट रेशो में हम क्या कहते हैं कि जो हम कहते हैं कि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन it is directly proportional, it is directly rather related कि जितना रूट्स पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे उतना ही हम कहेंगे कि जो वाटर दैट विल बी ट्रांसपायर्ड बाय द लीव्स. So we will see the increase in the ratio of root and shoot. अब हम देखेंगे कि रूट्स कितना पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे. जो रूट रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट सिस्टम एंड वाटर ट्रांसपायर्ड बाय द शूट्स बाय द लीव्स. सो इंक्रीज इन द रूट शूट रेशो अगर हम बात करें, इंक्रीज इन द रेशो ऑफ रूट एंड शूट इट एनहांसेस द रेट ऑफ ट्रांसफर. जितना पानी कम एब्जॉर्ब होगा उतना रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन बाय द लीव्स वो बहुत कम होगा. जितना पानी एब्जॉर्ब ज़्यादा होगा बाय द रूट्स उतना हम देखेंगे कि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन वो उतना ज़्यादा होगा बाय द लीव्स. सो वी विल से जितना इंक्रीज हम देखेंगे इंक्रीज इन द रेशो of root, increase in the ratio of the root and shoot, it increases the rate of transpiration. Now we have now got some external factors. अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात कर लेंगे, पहला हमारे पास आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. वेरी मच प्रेशर. जितना लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, what does it do? It increases the rate of transpiration. Low atmospheric pressure increases the transpiration. So atmospheric pressure जितना कम होगा उतना ज़्यादा transpiration होगा. Second one, atmospheric humidity. अगर हम ह्यूमिडिटी की बात करेंगे, इट मीन्स द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर. अगर हवा में ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी, अगर हमारे एयर में, अगर हमारे दिस व्हाट विल से एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर ज़्यादा होंगे, दैट मीन जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन वो कम होगी. हाँ, when the air is dry, that means when there are less number of water vapor, जो rate of respiration वो ज़्यादा होगी, rate of transpiration उतनी ज़्यादा होगी. Humidity simply means the amount of water vapors that are present in the atmosphere. अगर हवा में ज़्यादा, that is called as the water vapor ज़्यादा होंगे, so we will say it has got the होल्डिंग कैपेसिटी जो इसमें पास वाटर वेपर्स वो अब ज़्यादा नहीं है, इट हैज़ गॉट लेस. सो ट्रांसपायरेशन उतनी कम होगी क्योंकि अब हमारा जो हवा है एट हायर ह्यूमिडिटी अब और ज़्यादा वाटर वेपर्स नहीं ले पाता है. सो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन विल बी लेस. लेकिन जब हमारा हवा ड्राई होगा, दैट मीन्स में वाटर वेपर्स मौजूद नहीं है, दैट वी से कि अब ये ज़्यादा से ज़्यादा वाटर वेपर्स ले सकता है. सो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन उतनी ज़्यादा होगी. थर्ड, दैट इज द विंड. विंड इज द मूवमेंट ऑफ एयर. कहते हैं कि वाटर वेपर्स वो जमा हो जाते हैं नियर द लीव्स इन क्वाइट वाटर, इन द स्टिल एयर रादर, इन द स्टिल एयर. जब हम देखते हैं कि वाटर वेपर जब होते हैं हवा में, दे एक्यूमुलेट्स नियर द सरफेस, वो लीव के सरफेस पर जमा हो जाता है. जब हवा जो होती है वो बहुत धीमी होती है, वो बहुत क्वाइट होती है, वो सेटल होती है, उससे हम क्या देखते, उस पर असर क्या हो जाए. जब हवा कम होगी, जब इट इज़ अ सेटल हमारा एटमॉस्फेयर होगा, ये क्वाइट होगा, देन रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो होगी वो बहुत कम होगी. क्योंकि उस वक्त जो वाटर वेपर्स वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं ऑन दिस सरफेस ऑफ द वाटर. लेकिन अब जो मॉडरेट हमारे पास, अब जो हम कहते हैं ब्रीज जो चलती है, जो हल्की हल्की हवा चलती है, उससे क्या हो जाता है कि जो वाटर वेपर जो होते हैं दे डू नॉट गेट एक्यूमुलेट नियर द सरफेस ऑफ वाटर, वो फेल हो जाता है. उससे थोड़ी बहुत हम क्या देखते हैं कि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन वो ज़्यादा हो जाता है. लेकिन अब विद इंक्रीज्ड एयर करंट्स, अब जब हवा ज़्यादा चलती है, इनर लीव्स ऑफ द प्लांट्स दे आल्सो लूज मोर वाटर.
दे ऑल्सो लूज मोर वाटर। लेकिन ये देखा गया है कि हाई विंड वेलोसिटी में हम क्या देखते हैं, जब हवा की रफ्तार हाई 50 किलोमीटर पर आवर होगी, 60 किलोमीटर पर आवर होगी, उससे क्या देखा गया है कि इट इज सेट टू रिड्यूस द प्रोसेस, उससे जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसपैरेशन वो कम हो जाती है, क्योंकि उस वक्त हम क्या देखते हैं कि जो स्टोमेटा होते हैं दे गेट क्लोज्ड बाय सम मैकेनिकल क्लोजर स्टोमेटा टेक्स प्लेस एंड ऑल्सो बाय कूलिंग इफेक्ट। जो स्टोमेटा वो बंद हो जाता है क्योंकि तेज हवा में टेम्परेचर थोड़ा बहुत कम हो जाता है। अब एक और इफेक्ट जो हमारे पास है दैट इज सॉइल टेम्परेचर। अब विंड में पहले हम विंड की थोड़ा विंड में हम क्या देखते हैं कि जो सटल विंड जो क्वाइट विंड होगी, क्वाइट व्हेन द एटमॉस्फेयर इज क्वाइट, उस वक्त रेट ऑफ ट्रांसपैरेशन कम होती है। व्हेन द स्टिल ब्रीज, हल्की हवा चलती होगी, जो ट्रांसपैरेशन रेट वो ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जितना जितना विद इंक्रीज्ड एयर करंट, इनर लीव जो होते हैं प्लांट, जो इनर लीव्स ऑफ द प्लांट दे आल्सो लूज मोर वाटर। लेकिन एट हाई विंड वेलोसिटी ये देखा गया है कि जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसपैरेशन वो कम होता जाए, इट रिड्यूस द व्हाट वी कॉल्ड एज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपैरेशन, बिकॉज जो स्टोमेटा है वो बंद हो जाते हैं बाय दिस हाई स्पीड एज वेल मैकेनिकल, rather that is a mechanical closure of stomata takes place and also by cooling effect. Now fourth one जो हमारे that is the soil temperature. अब वो प्लांट्स जो वार्म टेम्परेचर में ग्रो कर लेते हैं, वार्म रीजन्स में जो ग्रो कर लेते हैं, दे शो लेस ट्रांसपैरेशन at a temperature lower than 5 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। वो प्लांट्स जो ग्रो करते हैं कहाँ पर, इन वार्म रीजन्स, दे शो लेस ट्रांसपैरेशन, वो लेस ट्रांसपैरेशन दिखाते हैं एट ए टेम्परेचर रेंज ऑफ 5 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन इसके बाद जब 5, 6, 7, 8, 9 जब टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता जाता है, फिर रेट ऑफ ट्रांसपैरेशन वो इंक्रीज हो जाती है। लेकिन फिर हम क्या देखते हैं, आफ्टर ए फॉल इज रिपोर्टेड, लेकिन 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा जब टेम्परेचर चला जाता है, देयर इज ए फॉल इन रेट ऑफ ट्रांसपैरेशन। सो सॉइल टेम्परेचर की हम बात करते हैं, जो प्लांट्स विच आर ग्रोइंग इन द वार्म रीजन्स दे शो लेस ट्रांसपैरेशन एट ए टेम्परेचर रेंज ऑफ 5 to temperature lower than 5 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन आफ्टर ए ग्रेजुअल इंक्रीज जो रेट ऑफ ट्रांसपैरेशन वो ज़्यादा हो जाती है, ये सॉइल टेम्परेचर है। लेकिन देन व्हेन द सॉइल टेम्परेचर it goes more than 20 degree centigrade, there is a gradual decrease in the transpiration. अब एक और that is the air temperature. सॉइल का भी इफेक्ट है कुछ और एयर टेम्परेचर का भी कुछ। एट हाई टेम्परेचर ये देखा गया है कि जो स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाते हैं, दैट ऑकर्स मैनी प्लांट्स mainly during the midday. एट हाई टेम्परेचर अगर हम बात करेंगे, जो रेट ऑफ इवापोरेशन होगी वो भी ज़्यादा होगी। अब जितना हम देखते हैं कि वेरिएशन आ जाएगी टेम्परेचर में, it also modifies the rate of transpiration. कहते हैं कि at very high and very low temperature stomata get closed. At very high and very low temperature stomata get closed, वो क्लोज हो जाते हैं। उससे क्या देखा गया है कि रेट ऑफ ट्रांसपैरेशन वो कम होगी। अब when the हम कहेंगे कि जब हम देखते हैं कि एट एवरेज टेम्परेचर जो हम देखते हैं कि जो टेम्परेचर हमारा होता है, इट हेल्प्स अस इन द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा बट विद इन सर्टेन लिमिट्स।
उससे ज़्यादा नहीं। क्या अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा 40 डिग्री 35 डिग्री, वी विल सी जो स्टोमीटा वो क्लोज हो जाते हैं। या जब एयर टेम्परेचर इट इज़ वेरी मच कूल बिलो द फ्रीजिंग टेम्परेचर बिलो द 5 डिग्री सेंटीग्रेड 8 डिग्री सेंटीग्रेड, हम ये देखते हैं कि स्टोमीटा क्लोज हो जाते हैं। उससे भी हम क्या देखते हैं कि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कम हो जाते हैं। लेकिन एट द मीन टेम्परेचर दैट इज 15 to 20 डिग्री 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 30 डिग्री सेंटीग्रेड, वी विल सी विद इन दिस रेंज जो स्टोमीटा है वो ओपन हो जाता है, विच हेल्प्स अस इन एनहांसिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। एक और हम इफेक्ट लिख सकते हैं, दैट इज द 5, दिस द 6, वी हैव गॉट द वाटर। जितना जमीन में पानी कम होगा इट डिक्रीजेज द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, क्योंकि उतना जो हम क्या देखते हैं कि पानी एब्जॉर्ब नहीं हो जाता है। जब पानी एब्जॉर्ब ज़्यादा नहीं होगा फिर रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी कम होगी। अगर ये देखा गया है कि इफ़ द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इट इंक्रीजेज इट एक्सीड्स, अगर रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन वो ज़्यादा हो गई रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, पानी जमा होने रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन से ज़्यादा हो गई क्या रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, फिर हम क्या देखते हैं कि स्टोमेटा जो होते हैं वो क्लोज हो जाता है, क्योंकि अब पानी उतना ज़्यादा जज़ब नहीं होता लेकिन ट्रांसपरेशन ज़्यादा हो जाता है, स्टोमेटा क्लोज हो जाता है और प्लांट में हम एक प्रोसेस देखते हैं, एक फिनोमेना हो जाता है दैट इज़ कॉल्ड एज द विल्टिंग। जो विल्टिंग हमने पहले ही पढ़ी है। कभी कभार हम ये देखते हैं कि जो विल्टिंग इट इज़ ऑफ डिफरेंट, वी हैव गॉट इंसिपिएंट विल्टिंग, वी हैव गॉट टेम्परेरी विल्टिंग, वी हैव गॉट परमानेंट विल्टिंग। इंसिपिएंट विल्टिंग में हम क्या देखते हैं, दैट इज़ द पार्शल, हम क्या देखते हैं पार्शल लॉस ऑफ टर्जिटी, कि उसमें हम कुछ साइंस नहीं देखते हैं प्लांट में कि इसमें विल्टिंग हो गई। लेकिन टेम्परेरी में देखते हैं कि उसमें हम थोड़ी बहुत हम देखते हैं कि साइंस और देयर द विल्टिंग हो गई है, कि जो पानी जो इखराज जो हुआ ट्रांसपायरेशन वो ज़्यादा हो गया। लेकिन जब हम देखते हैं कि एक से ऐसा भी होता है कि पानी ज़्यादा इखराज हो जाता है कि इफ़ दैट प्लांट इज़ पुट इनटू द वाटर, व्हाट वी विल सी जो प्लांट होता है इट डज नॉट रिगेन, इट इज़ व्हाट वी कॉल एज द ओरिजिनल स्टेट, सो that is called as the permanent wilting. So water की हम बात करेंगे, जितना पानी कम होगा in the soil, less the amount of soil water, it decrease the rate of transpiration. और दूसरी बात, if the rate of transpiration it exceeds the rate of absorption, उस वक्त हम क्या स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाता है और एक फिनोमेना एक अमल हो जाते हैं प्लांट्स में, that is called as the wilting. That is called as the wilting. So these are the different factors that affect the transpiration. We have categorized, we have differentiated those factors into two categories. We have got the internal factors, we have got the external factors. Internal factors हमारे पास 2-3 मैंने किए, that is structure of the leaf हम देखते जब in the xerophytic plants they have got this leaf modified, उनमें कुछ modify, they have got the thick cuticle या age of plant हम देखते हैं कि जो germinating seed it shows less rate of transfer, लेकिन at maturity जब plant mature हो जाए it shows the maximum amount of transfer, लेकिन जब senescence हो जाती है it shows वहाँ पर हम ये देखते हैं कि फिर जो ट्रांसफर वो कम हो जाती है। रूट शूट रेशियो में हम क्या देखते हैं कि जो व्हाट वी विल सी एट दैट पॉइंट, जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड वाटर ट्रांसफर बाय द लीव्स। सो जितना पानी रूट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे उतना ही हम देखते हैं कि वाटर ट्रांसफर हो जाएगा बाय लीव्स। एंड वी हैव आल्सो स्टडीड सम external factor, that is the environmental factor. We have got atmospheric pressure, low atmospheric pressure, it increase the rate of transfer. We have got the atmospheric humidity. If we will see, we have got the dry air, rate of transpiration is very much high. If we have got the less high humidity, if the air is humid, we will see rate of transpiration will be less. Wind in the quiet, if the atmosphere is quiet, we will see water जो vapors होते हैं they get accumulated on the surface of the water which decrease the rate of transpiration. लेकिन जब हमारे पास light breeze चलती होगी we will see that there will be the enhance in the
enhancement in the rate of transpiration at when there are the air currents. With increased air currents we will see जो leaves होंगे they will lose more water. लेकिन at high wind velocity अगर हम देखते हैं कि it is said to reduce the process by mechanical closure of stomata and by cooling effects. Then wind की अगर हम बात करेंगे, हाँ हमने पढ़ा सॉइल टेम्परेचर की हम बात कर लेंगे. द प्लांट्स ग्रोइंग इन वार्म क्लाइमेट, अगर हम वार्म रीजन की बात करेंगे, दे शो लेस ट्रांसपायरेशन एट ए टेम्परेचर रेंज ऑफ 5 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड. बट फिर हम क्या देखते हैं कि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन द सॉइल टेम्परेचर, लेकिन फिर डिक्रीज अगेन हो जाते हैं व्हेन द टेम्परेचर go decrease, it reduces when the temperature जो होता है it is reported, जो हम देखते हैं कि it the temperature goes beyond 20 degrees centigrade, that is the what we call as this fall in the rate of transpiration. Same is the case with the higher temperature. Higher temperature में क्या देखते हैं, stomata close most at the midday in many plants. At high temperature water जो होता है it evaporates with enhanced rate. So what we will simply हम कहेंगे at very high and very low temperature stomata get closed, and what we will see, सो जब लो टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाएगा टेम्परेचर दैट इज़ बिटवीन द एवरेज टेम्परेचर एंड दैट इज़ बिटवीन 10 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड, स्टोमेटा opens which enhances the rate of transpiration. Then there is the water. Less amount of water, it decreases in the soil, it decreases the rate of transpiration. ये भी देखा गया है कि if the rate of transpiration what we will see exceeds the rate of absorption, जो स्टोमेटा होता है they get close and the plant में एक हम देखते हैं एक phenomena हो जाता है that is called as the wilting. This was all about the factors that affect the transpiration. We will continue this topic, we will proceed further and in the next video which we will try to continue this topic. Until then, goodbye. God bless you. Thanks.